So today's topic is EIGRP. EIGRP. Okay, so enhanced interior gateway routing protocol. Interior gateway routing protocol. Okay, EIGRP. So EIGRP stand for Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. So this EIGRP protocol actually brought up from the IGRP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल. सो पहले ये प्रोटोकॉल IGRP था, उसको मॉडिफाई करके ये EIGRP प्रोटोकॉल बनाया है. Okay, now why this protocol has been brought up and what is the skills and capabilities of this protocol that we are going to see now. Okay, so let me draw a small topology first. All right, so I will take few routers. Let's say this is 1, this is 2, few switches to connect some computers, few computers, okay, let me connect them. Okay, and now how many networks you see here? 3 networks. Okay, so let's say this is 1 network, this is 2 network, and in between them there is a third network, which is this one. Perfect. All right, so I will make it little small and take it here. Okay, so this is a network. Now let's understand EIGRP routing protocol. So very first term about EIGRP protocol is this is a Cisco proprietary routing protocol. Okay, Cisco proprietary routing protocol means what? What do you mean by this? It means when you want to implement your EIGRP routing protocol, both the routers must be Cisco routers. So your this router should be Cisco, this router should be Cisco. If this router is Cisco and this is not Cisco, let's say HP router, then it will not work. You cannot use this because both routers must be Cisco. It is a Cisco's proprietary. Proprietary मतलब क्या होता है? Cisco का proprietary मतलब ये EIGRP प्रोटोकॉल जो है, EIGRP प्रोटोकॉल सिर्फ सिस्को के iOS में होगा, लाइसेंस्ड. ओके, उनका अपना खुद का बनाया हुआ प्रोटोकॉल जो सिर्फ सिस्को के ही iOS में एग्जिस्ट होगा. HP के iOS में नहीं है क्योंकि सिस्को ने किसी और को वो दिया ही नहीं है. जुनिपर के iOS में नहीं है, Alcatel के iOS में नहीं है, किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में वो प्रोटोकॉल एग्जिस्ट ही नहीं होगा. तो यहाँ पर इस राउटर में EIGRP है
और इस राउटर में EIGRP है ही नहीं, so obviously it will not work. All right, so that's the Cisco proprietary. This is something called as a Cisco proprietary. Okay. Okay, so this is a Cisco proprietary. Now let me write down here. Okay, very first thing is it's a Cisco proprietary. Cisco. Okay. Now, second thing is it's a classless routing protocol. All right, it's a classless. Classless routing protocol, that means what? This is first capability brought up in this protocol. For example, let's say I have one more router here, let's say router 3, and here few more networks. So here I can have a IP addresses like let's say 10.1.1.0, okay, slash let's say 8. Here I can have 10.2.2.0 slash 8. Here I can have some different class 172.25.16.0 slash let's say 20. Here I can have 192.168.10.0 slash 24, 192.168.20.0 slash 24. So look at this here. What ideally I am doing here. Here I have class A. Here I have class B. Here I have class C. So I have three different classes of IP addresses. Okay, and I very well can use this things here. तीन अलग अलग क्लासेस हैं और यहाँ पर मैं ये यूज कर सकता हूँ, बड़े इजीली यूज कर सकता हूँ. आई कैन यूज एनी ऑफ द क्लास IP एड्रेसेस नो मैटर. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ए classless. This is a classless routing protocol. Okay, now next is EIGRP use a concept. Okay, it has a concept called autonomous system. Okay, EIGRP uses the concept, okay, of autonomous system. Okay, now what is this autonomous system? So autonomous system actually is basically it is used to describe the set of contiguous routers. Okay, it's used to describe the set of contiguous routers that run same routing protocol and share routing information. Okay, understand what is this ASN. ASN क्या है समझो. सपोज आपका एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में आप क्या चाहते हैं. लेट्स से इन दिस नेटवर्क यू हैव ए 100 राउटर्स. ओके, इसके नीचे और एक राउटर लगा हुआ है इस राउटर के नीचे. ओके, एंड आफ्टर दैट आल्सो देयर आर मेनी राउटर्स. ऐसे कई सारे राउटर्स लगे हैं और काफी बड़ा नेटवर्क है. सो व्हाट आई वांट इज, अब सपोज मैंने इस राउटर पर कोई नया नेटवर्क ऐड किया तो ये क्या करेगा, ये अपने नेबर को अपडेट शेयर करेगा इसको, ये उसके आगे के नेबर को सेंड करेगा, ये उसके नेबर को शेयर करेगा, ये उसके नेबर को, ये उसके ऐसे करते करते लास्ट राउटर तक अपडेट जाएंगे. और इसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, है ना. यहाँ से अपडेट यहाँ तक जाने के लिए कुछ पीरियड लगेगा क्योंकि एवरी राउटर विल कीप फॉरवर्डिंग टू इट्स ओन नेबर. Okay, that period actually called as a convergence time.
कन्वर्जेंस टाइम। ओके, उस पीरियड को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस टाइम बोलते हैं। अपडेट्स को लगने वाला टोटल टाइम कन्वर्जेंस टाइम है। तो इस कन्वर्जेंस टाइम को कम करना, पहला एडवांटेज क्या है एएसएन का कि कन्वर्जेंस टाइम को कम करना है। कैसे? अब सपोज हमने क्या किया कि ग्रुप्स बना दिए, इतने राउटर का एक ग्रुप बना दिया और इतने राउटर्स का एक ग्रुप बना दिया। लेट्स से दिस इज ASN1, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1, एंड दिस इज ASN2। सो ये राउटर जब भी कोई चेंज होगा तो ये अपने ASN के अंदर अपडेट करेगा, पैरेलली दूसरे राउटर्स अपने अपडेट ASN के अंदर अपडेट करेंगे। तो आपका कन्वर्ज दो ग्रुप्स में बांट दिया तो आपका कन्वर्जेंस टाइम क्या हुआ? हाफ हो गया। ओके, तो जितने ग्रुप्स में आप डिवाइड कर दोगे राउटर्स को, कन्वर्जेंस टाइम रिड्यूस होगा, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, एक एएसएन में हर एक राउटर के डेटाबेस की साइज कम हो जाएगी। ये राउटर क्या करेगा? सिर्फ अपने एएसएन की ही टोपोलॉजी मेंटेन करेगा। ये राउटर्स क्या करेंगे? सिर्फ अपने ही एएसएन के टोपोलॉजी को मेंटेन करेंगे, तो उसका टोपोलॉजी मतलब डेटाबेस का साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। सो इफ योर डेटाबेस साइज इज स्मॉल, योर प्रोसेस, योर रूट कैलकुलेशंस विल बिकम मोर एंड मोर फास्टर। ओके, जितना आपका डेटाबेस का साइज कम होगा उतनी प्रोसेस फास्ट होगी। ओके, तो दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, एएसएन का? रिड्यूस, ओके, टोपोलॉजी टेबल साइज। ओके, रिड्यूसिंग टोपोलॉजी टेबल साइज, टोपोलॉजी टेबल के साइज को भी ये रिड्यूस कर देता है। दैट्स द पर्पस ऑफ एएसएन, ऑटोनोमस सिस्टम। ये ऑटोनोमस सिस्टम का पर्पस है। तो सिंपली यदि शॉर्ट में आपको रिमेंबर करना है कि ऑटोनोमस सिस्टम मतलब क्या हुआ, सो ऑटोनोमस सिस्टम मींस ग्रुप ऑफ राउटर्स। ओके, सो शॉर्ट में यहां पे लिखता हूं, ASN is a group of routers. Continue routers, okay, always it should be a group of contiguous routers, okay। जैसे ये राउटर, यहां पर समझो, दिस इज अ राउटर, ये राउटर और ये राउटर, ये दो राउटर एक ग्रुप में नहीं आ सकते क्योंकि ये कंटिग्यूअस नहीं है, एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच नहीं है, एक रेंज एक सीरीज में होने चाहिए, वो डिसकंटिग्यूअस नहीं होने चाहिए। ये उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, so this should be contiguous routers only can be part of the group। all right, this is the one. Now next condition is to understand about EIGRP protocol is EIGRP include subnet mask, in its routing updates। ओके, जब ये अपडेट भेजता है अपने नेबर को, whatever update it sends to its neighbor, for example this is a topology, और एक राउटर अपने नेबर को अपडेट भेज रहा है। ओके, assume that this router A is sending updates to router B। ए राउटर बी को अपडेट भेज रहा है, तो उस अपडेट पैकेट के अंदर सबनेट मास्क भी होगा। क्यों सबनेट मास्क भी भेजेगा ये अपडेट के अंदर? क्योंकि EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल क्लासलेस है, मतलब अलग अलग क्लासेस के आईपी एड्रेसेस भी सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली इफ इट सपोर्ट्स मल्टीपल डिफरेंट क्लासेस आईपी एड्रेस, इट शुड इंक्लूड सबनेट मास्क। ओके, इसको सबनेट मास्क इंक्लूड करना चाहिए। परफेक्ट, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay, now next characteristics of this protocol is, अगला इसका कैरेक्टर क्या है EIGRP प्रोटोकॉल का? It synchronize its routing table with the neighbor router in two conditions. Okay, it synchronize okay routing table with neighbor, okay,
एट द स्टार्टअप। ओके, मतलब जब आप राउटर को ऑन कर रहे हो, राउटर आपका स्टार्ट हो रहा है, तब जब आपका प्रोटोकॉल फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, तब ये राउटिंग अपडेट्स नेबर को सेंड करता है। एंड specific updates when any changes occur in the network. All right, so this is the two conditions. Let's understand what I mean to say about this. So first time ये change कब करता है? जैसे ये राउटर्स ऑफ है और आपने पहली बार राउटर्स को ऑन किया, और भी कई सारे राउटर्स कनेक्टेड हैं, ओके, और ये नेटवर्क है। अब आपने इस राउटर को, इन राउटर्स को पावर ऑन किया, जैसे ही EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल अप हुआ, तब ये अपने टेबल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, ओके, फर्स्ट टाइम, ओके, व्हेन द प्रोटोकॉल स्टार्ट्स अप। और एक बार जैसे ही प्रोटोकॉल स्टार्ट अप हो गए, सबने अपना अपना टोपोलॉजी मैप बना लिया, उसके बाद फिर ये पीरियडिकली सेंड नहीं करते जैसे RIP करता है। RIP राउटिंग में कोई चेंज हो या ना हो, हर 30 सेकेंड में वो अपडेट भेजता है। भाई कोई नेटवर्क हर 30 सेकेंड में थोड़ी आप कुछ नया लगाते हो, उसमें नहीं लगाते हो, बट वो हर 30 सेकेंड में अपडेट भेजेगा, तो उसका ट्रैफिक, अपना खुद का ही ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए EIGRP में ये मॉडिफिकेशंस लाए हैं कि ये पीरियडिकली अपडेट सेंड नहीं करता, ये एक बार एट द स्टार्ट में, स्टार्टअप में, उसके बाद जब कोई चेंजेस होंगे तब। मैंने यहाँ पर एक नया नेटवर्क ऐड किया, तो एक नया नेटवर्क ऐड किया, तो इस राउटर के लिए ये चेंज हुआ, नया चेंज हुआ कुछ, तो ये अपने नेबर को इन्फॉर्म करेगा, ये उसके आगे इन्फॉर्म करेगा, ऐसे सब तक अपडेट हो जाएगा। सो कुछ नया ऐड करना मतलब चेंज नहीं है, ओके, कोई नेटवर्क डिलीट करना, कोई नेटवर्क मॉडिफाई करना, इस नेटवर्क का लेट्स से पहले आईपी एड्रेस था 192.168.20.0, इसको बदल के हमने कर दिया 172.16.1.0, ये क्लास बी कर दिया, ओके। सो दिस इज ऑल्सो एज अ चेंज, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ चेंज, फाइन, perfect. So change, it does not mean that only when you add that consider as a change, no, anything. Understood? So this is perfect. Now next one is, next condition is EIGRP protocol actually is designed for large organizations, okay? ये large organizations के लिए बनाया है, बड़े से बड़े नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है, जहां पर हजारों लाखों के काउंट में यूजर्स हैं, okay? So it supports 255 hop count, okay? सो ये हॉप काउंट का फंडा थोड़ा सा आप समझना जरूरी है सब लोगों को। RIP कितने हॉप सपोर्ट करता है? दिव्या बताइए, RIP कितने हॉप सपोर्ट करता है? जल्दी म्यूट अनम्यूट करना है और बोलना है, फिर से म्यूट कर देना है। मैक्सिमम 50 हॉप्स। मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 50 हॉप्स। 50? यस सर। गलत है। 15 15 not 50, maximum 15 hops, okay? So RIP routing protocol supports maximum 15 hops. अब यहां पर मैं आपका मिथ कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। देखो, RIP राउटिंग प्रोटोकॉल छोटे नेटवर्क्स के लिए सूटेबल है, जहां पर 15 हॉप्स ही मैक्सिमम सपोर्ट करता है। तो समझो ये एक राउटर है, 2 राउटर, 3 राउटर, 4 राउटर, 5 राउटर, 6 राउटर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 राउटर बना दिए मैंने। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड का मैप है समझ लो, और किसी कंपनी के 25 अलग अलग कंट्रीज में नेटवर्क्स हैं, ऑफिसेस हैं, ओके। और ये सारे राउटर्स एक दूसरे से, सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे ब्रांचेस।
जैसे इन्फोसिस का 150 कंट्रीज में है वो तो एग्जिस्ट, मैं तो 25 की बात कर रहा हूँ। ओके, ये नेटवर्क है ऐसा, इस तरह का ये नेटवर्क है आपका काफी बड़ा। अब यहाँ पर मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है, तो कौन सा यूज करें, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए यहाँ पर? हाँ भाई ऋषिकेश बताओ। EIGRP 255 हॉप सपोर्ट करता है और RIP सिर्फ 15 हॉप सपोर्ट करता है। ऑलरेडी यहाँ पर 26 राउटर्स हमने ऐड किए हैं, तो क्या RIP चलेगा? AIGRP प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा सर। हाँ राइट, और RIP क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर वो 15 हॉप्स है उसका मैक्सिमम उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 15 हॉप्स ही है सर। राइट। हाँ भाई संदीप। शिवहरी बताइए। EIGRP करना पड़ेगा। EIGRP करेंगे, बराबर है। RIP क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका मैक्सिमम 15 हॉप्स ही। हाँ, मैक्सिमम 15 हॉप्स ही सपोर्ट करता है, राइट। हाँ यस। तो और यहाँ पर कितने राउटर्स है अपने पास अभी? 26। 26 है, राइट। सब लोगों को समझ में आ गया? एवरीबॉडी इज रॉन्ग, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर RIP राउटर, RIP राउटिंग प्रोटोकॉल का मैक्सिमम हॉप काउंट सपोर्ट है 15, टोटल राउटर सपोर्ट नहीं है 15 भैया। टोटल 15 राउटर सपोर्ट करता है ऐसा नहीं है, 1000 राउटर भी हो सकते हैं RIP में। हॉप काउंट 15 सपोर्ट करता है सिर्फ। हॉप काउंट मतलब वाया राउटर्स। अब देखो, इस राउटर को, राउटर A को इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है यहां पर, तो ये निकला, ये सोर्स है, ये राउटर डेस्टिनेशन है। तो वाया कितने राउटर्स हुए? एक, ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, लेट्स से ये 4 हुआ, 5, 6, और फिर डेस्टिनेशन आ गया। सिर्फ 6 हॉप्स हुए यहां पर, 6 हॉप्स में यहां तक चला गया। समझ में आ रही है बात तुम लोगों को? तो ये 6 हॉप्स है, 100% यहां पर RIP वर्क करेगा एक्सेलेंटली। RIP विल वर्क 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो RIP ने क्या देखा समझो, यहां पर मैं एग्जाम्पल बताता हूं और एक। समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब RIP को समझो, यहां पर RIP को यहां से इस A राउटर से यहां पर आना है, इस नेटवर्क में आना है। कौन से नेटवर्क में? 192.168.10.0 वाले नेटवर्क में आना है। तो ये क्या कर रहा है? राउटिंग प्रोटोकॉल का कैरेक्टर क्या होता है? कितने रूट अवेलेबल है ये पता करता है, वो है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? यस। हाँ, तो ये है उसका रूट 1। उसने ढूंढा कि ये मेरा रूट 1 है। फिर ये ढूंढेगा, अच्छा रूट और कितने पॉसिबल रूट्स हैं, पहले तो वो पता करेगा कि कितने पॉसिबल रूट है, फिर उनमें से जो बेस्ट है वो चूज करता है। यही प्रोटोकॉल का फंडा है। तो इसने देखा कि ये पॉसिबल रूट है। दूसरा और रूट कौन सा पॉसिबल है भाई? ये पॉसिबल है। यहां से मैं इधर आऊंगा, इधर जाऊंगा, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये डेस्टिनेशन। तो ये रूट हो गया रूट 2। ये हो गया मेरा रूट 2। इसमें मेरे पास 7 हॉप्स है, इसमें मेरे पास 6 हॉप्स है। ये देखेगा और एक ये भी रूट है मेरे पास, तो उस रूट को कैलकुलेट करता है कि ये रूट और इधर से कोई रूट है क्या। ये आ गया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
और ये 9 यहाँ पे पहुंच गया, तो ये भी रूट है मेरे पास अवेलेबल है। रूट 3, इसमें मेरे पास 8 रूट अवेलेबल है, 8 हॉप्स है। और देखता है कि और कितने पॉसिबल रूट्स हैं, और ये पॉसिबल रूट्स देख रहा है कि भाई मेरे पास और एक ये रूट भी है, एक, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 यहां पर हो गया। जैसे ही यहां पर 15 होगा, आपका जो पैकेट है, जो जाने वाला पैकेट है, यहां पर डेड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये देखेगा कि ओके, ये वाला रूट जो है वो रूट मेरे लिए क्या है, दैट रूट इज, दिस रूट इज इनवैलिड, इनवैलिड रूट। ये रूट क्या है, इनवैलिड रूट है। समझ में आ गया? तो इसके पास टोटल 4, उसमें से एक इनवैलिड हो गया, तो 1, 1, 2, 3। अब ये 3 में ही वो शॉर्टलिस्ट करेगा। तो यहां पर देखो, इसमें 7 हॉप्स है, इसमें 6 हॉप्स है, इसमें 8 हॉप्स है, तो ये लोवेस्ट है, इस रूट को वो चूज कर लेगा। अरे बात समझ में आ रही है सब लोगों को? एवरीबॉडी इज गेटिंग मी? यस सर। हाँ संदीप। यस सर। तो आरआईपी कितने राउटर सपोर्ट करता है अपने एक नेटवर्क में? कितने? कितने राउटर्स आरआईपी सपोर्ट करेगा अपने नेटवर्क में? अनलिमिटेड राउटर्स। राउटर्स की कोई लिमिट नहीं है, रूट्स में नंबर ऑफ हॉप्स की लिमिट है। ऐसे रूट्स वो ड्रॉप कर देगा जिनमें वाया राउटर्स जो है वो 15 से ज्यादा है। 15 तक के ही रूट्स को वो कंसीडर करेगा, उससे ज्यादा जिस रूट में है वो छोड़ देगा। तो आरआईपी में भी 100 राउटर, 200 राउटर, 1000 राउटर हो सकते हैं। ये रूट का मैटर है, नंबर ऑफ राउटर का मैटर नहीं है। तो सोचो कि आरआईपी में 15 हॉप काउंट है, तब भी हजारों राउटर्स का नेटवर्क हो सकता है। तो 255 हॉप्स की लिमिट हो जाएगी, तो कितना बड़ा हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड का उसमें समा सकता है। समझ में आ रहा है? पूरा वर्ल्ड समा सकता है उसके अंदर। तो ये कैपेबिलिटी है EIGRP की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हॉप का फंडा क्या है। हॉप्स, दैट मीन्स नॉट टोटल नंबर ऑफ राउटर, हॉप मीन्स नंबर ऑफ राउटर इन द रूट। परफेक्ट। ऑलराइट, सो ये मैंने एडिशनली आपको क्लियर किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। Okay, so EIGRP supports up to 255 hops. A part of this, EIGRP has got a next feature. It supports IP, IPX, AppleTalk protocols. Okay, so ये EIGRP प्रोटोकॉल जो है वो मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। ओके, मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मीन्स आपके पास यदि ये बड़ा नेटवर्क है, यू कैन हैव different types of routing protocols running in your network. So यहाँ पर let's say मेरे पास IP नेटवर्क है, यहाँ पर मेरे पास let's say IPX नेटवर्क है, यहाँ पर Apple Talk है. So I can have a different network layer protocols in my network, still it will work. Okay, this is the first condition. Next feature EIGRP का advanced feature क्या है? Next advanced feature is efficient neighbor discovery. Efficient neighbor discovery. Okay, efficient neighbor discovery, that means what? So सबसे पहली conditions क्या है इसकी? Efficiency neighbor discovery, that means EIGRP routing protocol will never share routing informations with the neighbor router until they do not become neighbors. Router A router B को तब तक अपनी routing information शेयर नहीं करेगा जब तक ये दोनों neighbors नहीं बन जाते. Okay, these should be neighbors. अब नेबर बनने के लिए क्या है, क्या करना चाहिए? नेबर बनने के लिए there are 3 conditions which must match. Okay,
तीन कंडीशंस मैच होनी चाहिए. ओके, कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग नेबरशिप. ओके, पहली कंडीशंस क्या है? कंडीशन 1, should send and receive hello message. ओके, तो पहली कंडीशन क्या है? राउटर्स के बीच में हेलो मैसेज सेंड एंड रिसीव होना चाहिए. ओके, हेलो मैसेज सेंड और रिसीव होना चाहिए. सो कंडीशन है, ए राउटर अपने नेबर को, डायरेक्टली अटैच राउटर को हेलो मैसेज सेंड करेगा. ये राउटर क्या करेगा? उसका एक्नॉलेजमेंट देगा. हेलो एंड एक्नॉलेजमेंट सेंड हो गया. फिर ये हेलो सेंड करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट देगा. ये एक कंडीशन पास हो गई, पहली कंडीशन पास. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन इज both routers must be from same ASN. दोनों ही राउटर्स एक ही ASN के मेंबर्स होने चाहिए. ओके, these two routers, both of the routers must be part of the same ASN. all right, remember that. यदि ये राउटर किसी और ASN का मेंबर है, यहां पर आपने ASNs क्रिएट किए हुए हैं. ये राउटर ASN है ASN1, ये राउटर है ASN2, okay, 2, then they cannot become neighbors. So primarily both router must be from the same ASN. दोनों राउटर एक ही ASN के मेंबर होने चाहिए. That is the second condition. all right, and third condition is to become neighbor is metric. EIGRP metric must be same. अब EIGRP की मैट्रिक क्या होती है? यहां पर लिखता हूं, EIGRP मैट्रिक is equal to distance plus bandwidth, ओके, प्लस डिले. ओके, ये क्या करता है? डिस्टेंस और बैंडविड्थ और डिले के बेस पर एक वैल्यू जनरेट करता है, और वो वैल्यू क्या है? मैट्रिक है. समझो यहां पर. फॉर एग्जाम्पल you have a scenario like this. You have one more router here, another router here and another router. अब राउटर A को यहां पर आना है राउटर B पर, तो क्या करेगा? इस पूरे रूट की डिस्टेंस क्या है, उसकी बैंडविड्थ क्या है और डिले क्या है, उसके बेस पर इसने कोई एक वैल्यू जनरेट की. लेट्स से 10560, ये वैल्यू. यहां की बैंडविड्थ क्या है, डिस्टेंस क्या है और डिले क्या है, उसके बेस पे एक वैल्यू जनरेट की. लेट्स से 7050. ओके, तो ये इस रूट की टोटल मैट्रिक ये हुई, इस रूट की टोटल मैट्रिक ये हुई. अब बेस्ट रूट कौन होता है? जिस रूट की ये मैट्रिक लोवेस्ट होगी वो बेस्ट रूट होगा. ये 7000 है, ये लोवेस्ट है, तो इस रूट को ये प्रेफर करेगा. सो EIGRP की मैट्रिक क्या है? डिस्टेंस प्लस बैंडविड्थ प्लस डिले. इन तीन चीजों के बेस पर वो एक मैट्रिक, एक वैल्यू जनरेट करता है, और वो वैल्यू आपकी उस वैल्यू को कंपेयर करके बेस्ट रूट चूज करता है. EIGRP का फंडा अलग है. भाई देखो, RIP क्या काम करता है, कैसे सर्च करता था बेस्ट रूट? किस रूट में लेस नंबर ऑफ हॉप है. ओके, जैसे RIP को यहां से यहां पर जाना है, तो इस रूट में एक हॉप है, इस रूट में 2 हॉप है, तो ये लेस हुआ ये. बट क्या ये रूट वाकई में अच्छा है? जिस रूट का डिस्टेंस कम है वो रूट बेस्ट होता है क्या? नहीं. पुणे टू मुंबई जाने के लिए एक रूट है मेरे पास जिसका डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, बट सिंगल लेन का कच्चा रास्ता है, जिसको जाने के लिए 6 घंटे लगते हैं. दैट इज योर डिले. दूसरा रूट अवेलेबल है जो 250 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर ज्यादा है, बट वो 4 लेन का रोड है और वहां से जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं. तो कौन सा रूट बेटर हुआ? दूसरा रूट बेटर हुआ, इवन दो
even though the distance is more. ओके तो EIGRP इस तरह से रूट कैलकुलेट करता है. ऐसा रूट जो शॉर्टेस्ट है, it's not necessary that that route would be the best. Okay, like that. So EIGRP algorithm works in this way. Okay, so तीसरी कंडीशंस मैंने क्या बताई थी नेबरशिप के लिए? EIGRP मैट्रिक मस्ट बी सेम एट द बोथ साइड. तो EIGRP की मैट्रिक सेम होनी चाहिए. जैसे पुणे टू मुंबई 200 किलोमीटर है, तो पुणे से मुंबई को हम मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे हैं तो 200 निकल रही है, तो मुंबई से पुणे भी 200 ही होनी चाहिए. पुणे टू मुंबई 200 किलोमीटर है और मुंबई टू पुणे 250 किलोमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मतलब हुआ जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है, तभी तो डिस्टेंस बदल गया, तो वो फिर नेबर नहीं बनेंगे. राउटर ए राउटर बी के बीच में मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा है, वो ये 7000 आ रही है, बी एक से कैलकुलेट कर रहा है वो 8000 आ रही है, इसका मतलब ये रूट गड़बड़ है. ओके, रूट में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पर. सो लाइक दैट, तो फिर वो नेबर नहीं बनेंगे. सो दीज ऑल आर 3 कंडीशंस. ओके, next feature of your EIGRP protocol is communications via RTP, reliable transport protocol. Reliable transport protocol. Okay, so EIGRP प्रोटोकॉल एक अपना प्रोप्राइटरी खुद का प्रोटोकॉल यूज करता है इन राउटर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. इट यूज इट्स ओन प्रोटोकॉल. ओके, इस राउटर ये चेक करता है कि मेरा नेबर है कि नहीं है, अभी अवेलेबल है कि नहीं है, फेल तो नहीं हो गया, ये चेक करने के लिए कम्युनिकेशंस करता है, और इसके लिए ये आरटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है. आरटीपी, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, which gives you more reliable communication between the neighbor routers. So this is another feature. Next feature is best path selection via dual algorithm. ओके, डुअल एल्गोरिथम मतलब क्या है? डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम. ओके, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम. ओके, ये डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम क्या करता है? ये एल्गोरिथम ही आपका बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है. जैसे मैंने बताया, ये मैट्रिक कैलकुलेट करने का काम डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम का है, और कंपेयर करना है. मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है, मल्टीपल पाथ अवेलेबल है किसी एक डेस्टिनेशन को जाने के लिए, तो ये डुअल कंपेयर करता है विच इज द लोवेस्ट वन. ओके, और जो लोवेस्ट है उसको प्रेफर करेगा. यदि दोनों रूट्स की मैट्रिक्स सेम है तो लोड बैलेंसिंग करेगा. इट कैन बैलेंस लोड अप टू 4 इक्वल कॉस्ट रूट. ओके, 4 इक्वल रूट्स के बीच में ये लोड बैलेंस कर सकता है. परफेक्ट. So this is your EIGRP routing protocol. Now, few metrics to remember about EIGRP. Okay, so metrics to remember. पहली चीज क्या है? टाइप. ये प्रोटोकॉल टाइप क्या है? हाइब्रिड. हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है. स्टैंडर्ड क्या है इसका? सिस्को प्रोप्राइटरी. ओके, इसका एडी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है EIGRP प्रोटोकॉल का? 90, मतलब RIP से ज्यादा ट्रस्टेड है. प्रोटोकॉल्स सपोर्ट कौन कौन से करता है ये? IP,
IPX, and Apple Talk. Okay. A part of this, what it does, hop count, hop count 255. Okay. Load balance, 4 routes. Okay. A part of this, what it is, multicast address. Multicast address इसका है 224.0.0.10. Okay, there is no broadcast. Okay, इसका hello timer is 5 second. Okay, hold timer 15 second. Okay, ये इसके timers हैं. Fine. So these all are few features. Algorithm dual. ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिन फीचर्स पर आपका AIGRP काम करता है. ये मैट्रिक्स टू रिमेंबर, ये आपको रट जाने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए. इस पे से ही आप सारे इंटरव्यू क्वेश्चन रिकॉल कर सकते हो. ओके, फीचर्स मैं शॉर्ट में लिख देता हूं. फीचर्स इसके क्या क्या है? ऑटो मैनुअल समरी, ये ऑटो और मैनुअल दोनों समरी प्रोवाइड करता है. क्लासलेस है, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है. ऑथेंटिकेशन. ओके, अच्छा, ऑथेंटिकेशन सिर्फ MD5 सपोर्ट करता है. ये क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता. देयर इज नो क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, ओनली MD5. और एक नया फीचर रीडिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ये आप CCNP वगैरह में समझेंगे क्या होता है ये. So these all things which your AIGRP protocol supports. ये छोटा metric to remember जो है, ये mind map है, kind of mind map. ये आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए इतना. So that based on this you can talk a lot about AIGRP protocol. This was not part of CCNA, but still I have taken this topic to just, because it is coming up in, it is there in CCNP and CCI with very wide way. CCNP और CCIE में बहुत बड़ा subject है ये. Okay, so let me show you a small practical also for this. I have removed it and I will use this one, this topology only. Okay, let me create a networks here. Let's say 192.168.10.0/24. Here I will take like, let's say कुछ और class 10.1.1.0/8. यहाँ पर मैंने ले लिया let's say 172.25.16.0/20. Okay, ये ले लिया. तो यहाँ पर ये 10 क्लास C है, क्लास A है, क्लास B है. Okay, now I will give an basic IP addresses first. Let's start from this router. CLI no, enable config terminal, hostname router 1 and INT F0/0, IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. No shutdown and exit INT F0/1 IP address 10.1.1.1/8 है वो, है ना. No shutdown and exit. Perfect. So इसके दोनों इंटरफेस पर IP एड्रेस दे दिया मैंने. Do show IP INT brief. Perfect है. So it's good. This is down, it will up. Okay,
Now let me go and give IP address to this computer. What is that? 10.1.1.2. 10.1.1.1. Perfect. 10.1.1.3. 10.1.1.1. Good. So this part is done. Now let's do on this router. No. Enable config terminal, host name, router 2, int, f0/0, IP address 192.168.10.2. Okay, no shutdown and exit. Perfect. So this part is done on this. Now here on this should be 172. Okay, so int f0/1, IP address 172.25.16.1/20 मतलब क्या होगा 255.255.240.0. all right, no shutdown and exit. Perfect. Do show IP int brief. Perfect, both are up. Okay, now to this computer, go here, give the IP address 172.25.16.2. What is that? 172.25.16.2, and this should be 240. 172.25.16.1. Perfect. There should be 3. 172.25.16.3, and this is 240. 172.25.16.1. okay, perfect. अब यहाँ पर देखो सिंपल है राउटिंग करना. यहाँ पर देखो अभी आप पिंग करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि राउटिंग ही नहीं है. पिंग 172.25.16.1 में पिंग करता हूँ, नहीं हो रहा है. ओके, 2 पिंग करते हैं, नहीं हो रहा है क्योंकि राउटर के पास कोई रूट ही नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं यूजुअली जो होना चाहिए. ओके, डू शो रूट. देखो सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं. तो इसमें भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कोई भी हो, सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क्स आपको ऐड करने हैं आरआईपी के जैसे. ओके, ऑलराइट. सो यहां पर देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले तो क्या यहाँ पर मैंडेटरी क्या है, ASN. तो ये EIGRP है और मुझे ASN बनाना है. तो ये दोनों राउटर को मैंने ये ऐसे एक EIGRP ग्रुप के अंदर लेकर आ गया. EIGRP लेट से कुछ भी मैं नंबर दे सकता हूँ, मैंने 100 दे दिया. ओके, सो वैसे कॉन्फ़िगर करेंगे. सो राउटर EIGRP और क्वेश्चन मार्क देखो. आप ASN 1 से लेकर 65,535 तक कुछ भी दे सकते हैं. मैंने 100 ले लिया. अब यहाँ पर क्या करना है, नो ऑटो समरी. नो ऑटो समरी एक कमांड रन कर देंगे. अब यहाँ पर देखो यदि आपके एक ही क्लास के नेटवर्क है सारे 192.168.10.0 20.0 30.0 एक ही नेटवर्क है तो आपको वाइल्ड कार्ड नहीं देना है. मतलब आरआईपी में दिया था वैसे दे देना है. कैसे, नेटवर्क 192.168.10.0 ये दे दिया, 20.0 दे दिया. बट ये आपके अलग अलग क्लासेस है, क्लासलेस है, तो आपको वाइल्ड कार्ड देना चाहिए. वाइल्ड कार्ड मतलब उसका सबनेट मास्क जो था 255.255.255.0, तो उसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा 0.0.0.255. ओके, उसी तरह से दूसरा ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, ये डिफाइन कर देंगे. नेटवर्क 10.1.1.0/8 का 255.0.0 का क्या होगा 0.255.255.255. ऐसा भी दे सकते. हो गया, दोनों दो कनेक्टेड है, दोनों दे दिए, डन हो गया काम. ओके, इस राउटर पर ये दो कनेक्टेड है, वो दे देंगे. ASN सेम होना चाहिए. राउटर EIGRP 100.
no auto, no auto summary, network 192.168.10.0. Okay, and another one, network 172.25.16.0. wildcard 2/20 255 255 240.0. तो 0.0.240 minus 255 15.255 बताया पढ़ाया है ये। एग्जिट डन। ये हो गया। कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है तो इस तरह का, लेट मी कॉपी दिस फॉर यू। ऑलराइट, सो EIGRP configuration. Okay, so how to configure this? This is on router 2. This all commands are, these all are additional lines, unwanted lines मैं delete कर देता हूँ। ये router 2 पर था और router 1 के commands ये है। Okay, done. So this is how you can configure. Now check it. Is it working? It will work now. Perfect. Routing table check करो क्या आ रहा है routing table में। Show IP route, देखो आ गया। D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? EIGRP को। ये नेटवर्क आ गया। ये क्या है? उसका AD और ये उसका मैट्रिक वैल्यू है जो मैंने बताया था कि डिस्टेंस, बैंडविड्थ और डिले के बेस पे कैलकुलेट करता है। दिस इज योर मैट्रिक। परफेक्ट। सो दीज ऑल आर कनेक्टेड नेटवर्क्स एंड मैट्रिक्स एंड एवरीथिंग। तीनों नेटवर्क आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ कमांड्स है, यू कैन चेक। शो IP EIGRP इंटरफेस। इससे हम ये पता करते हैं कौन कौन से इंटरफेस पर EIGRP रन हो रहा है। इंटर, देखो ये बता रहा है EIGRP F0/0 पर रन हो रहा है, F0/1 पर रन हो रहा है, राइट। So we can run this command. Now I can check show IP EIGRP neighbors. Okay, show IP EIGRP neighbor. So look at this, it is telling me who is my neighbor. My neighbor is 10.2. Okay, तो इससे ये आपका नेबर कौन है ये बता देता है। नेक्स्ट, शो IP EIGRP टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी टेबल ये सिस्टम यूज का है, उसके बैकएंड में यूज होता है। टोपोलॉजी देखो हर एक रूट है और उस रूट का मैट्रिक वगैरह क्या है वो है उसके आगे। Okay, now you can check here show IP EIGRP traffic. Look at this, show IP EIGRP traffic में क्या बता रहा है? EIGRP statistics process ID क्या है इसकी? 100, मतलब ASN नंबर। हेलो मैसेज कितने बार, कितने सेंड हुए, कितने रिसीव हुए, अपडेट कितने सेंड, कितने रिसीव, कितने एरर्स, कितने क्वेरीज, ये आपको यहाँ पर दिखाएगा। नेबर CP नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे चेक करो कि भाई हेलो जा रहा है, आ ही नहीं रहा है उधर से, तो दैट यू कैन चेक यूजिंग दिस कमांड। ओके, शो IP प्रोटोकॉल। लुक एट दिस, शो IP प्रोटोकॉल आप रन करोगे तो ये बता रहा है आपका प्रोटोकॉल कौन सा है। EIGRP 100, ये मैक्सिमम हॉप काउंट 100 दिखा रहा है, डिफॉल्ट 100 होता है और आपको कमांड से इंक्रीज करना होता है इफ यू वांट मोर देन 100। ओके, नाउ मैक्सिमम पाथ इट सपोर्ट्स 4। देखो EIGRP का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 है, एक्सटर्नल 170 है। मैंने उस दिन टेबल लिखाया था, उसमें लिखाया था एक्सटर्नल EIGRP 170, दिस इज द डिस्टेंस। Perfect. So these all are few commands and the EIGRP. Okay, do practice and let me know if any error comes up. RIP practicals सब लोगों ने किया है? Yes.
Okay.